हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो वेलकम टू दिस रीडिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, एंड ऑल्सो इस रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस है, क्या इश्यूज़ है, एंड फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का। Like I will channel some messages also, channel messages deck से नहीं, but through these oracle cards, and I'll basically discuss everything, ठीक है। and also universal message क्या है आप दोनों के इस time इस situation के लिए, ठीक है। so basically your current persons current energies and channeled messages, अगर वो कुछ कहना चाहेंगे आपसे आज, future actions and universal message, okay, because this is the most requested video in this channel I think. Anyways, but याद रखना है आप लोगों को that ये general reading है, so please जितना resonate करे उतना ही लेना इस reading से, do not force to fit in. And मेरे बारे में अगर आपको कोई information चाहिए तो नीचे मेरे description box से आपको मिल जाएगा सारा information. And also this is something I would like to add, which is जो लोग स्पेशली जो लोग आप लोग मैनिफेस्टेशंस करते हो या आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, लाइक आई नो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारा मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों के दैट बेसिकली एडवाइस मांगते हैं वो लोग कि कैसे मैनिफेस्ट करना है, व्हाट शुड दे डू, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, या फिर जो लोग कैंडल मैजिक प्रैक्टिस करते हो मे बी वो लोग, या इन जनरल इफ़ यू जस्ट मेडिटेट, या फिर आप अगर spiritually connected हो, आपको लगता है, I would add that I have this candle here that you guys can see. This is something which I made personally, and अगर आप चाहते हो you will find a link in the description box. You can buy candles, something like I only have this variety right now. This is something that is made for like meditation, come your manifestations for fortune, okay. And because people ask me that what ingredients do I use, now these candles they have some ingredients in it, that is जो help करता है to build that manifestation, to attract those energies from the universe. So अगर आप चाहते हो you can buy these candles if you want, or else never mind, you can still manifest, you can still do your thing, जैसे आपको मर्जी. So I just thought of sharing this with you guys that मैंने अभी तक इसको लेबल नहीं किया है इस कैंडल को, बिकॉज दिस इज़ समथिंग न्यू, लाइक आई डिड नॉट पुट एन इन लेबल बिकॉज मैंने ये खुद के लिए बनाया है, एंड दिस इज़ व्हाट आई यूज़ फॉर माई मैनिफेस्टेशंस, एंड दिस वन इज़ फॉर योर फॉर्चून, वेल्थ, मनी, you know, all that sort of things, your career, your financial growth जिसे कहते हैं basically finances. So इसके साथ you can meditate, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है you can journal इस कैंडल के साथ, like you can burn this, you can journal, you can meditate. आप जैसे भी जो भी manifestation आप practice करते हो you can do it with that, you know, you have to feel the energies, you have to connect with the candle and you can do that. And also if you want to do candle magic, कुछ लोग I know कुछ लोग यहाँ पे करते हो candle magic, you can still do that. Anyways, let's get on to the video. आपको सारे जो टाइम स्टैम्प्स है वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो अगर आपको ये कैंडल के बारे में और भी जानना है यू विल फाइंड दैट डाउन इन द लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा आपको. इट्स योर चॉइस. सो नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी दैट आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है एंड व्हाट वुड दे लाइक टू टेल यू, ठीक है. सो मैं एज यू नो मैं 3 पाइल्स बनाऊंगी यहाँ पे, एंड आप लोगों को सिलेक्ट करना है पाइल्स. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप पाइल्स के ऊपर कुछ रखा करो so that we can you know, choose in a better way. So that is what I have thought of today. Anyways, let's see आपके पाइल्स क्या क्या है. Okay, so this is pile number 1, pile number 2, pile number 3. 1 2 3. Let's move on and let's see. आप चूज़ कर सकते हो, you can use your intuition, you can use your numbers or anything. अगर आप चाहो कि मैं crystals ऐड करूँ I can still do that.
not crystals but you know stones. Crystals नहीं कह सकते. So I have this white stone for my pile number 1, this green stone for my pile number 2, and the yellow one for pile number 3. Okay, so आप choose करें, take your time, take a deep breath. कोई हड़बड़ी नहीं है, you can concentrate. आप वीडियो को pause भी कर सकते हो and you can concentrate for this. कौन सा आपको चूज करना है? I'll bless your reading. Okay. Use your intuition and कोई भी पाइल चूज़ करो. There is no hard and fast rule. Don't stress, don't think. आपके पर्सन के बारे में सोचो and just think about कि वो आज आपसे क्या कहना चाहेंगे, वो आज आपसे क्या कह सकते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, आपके मन में questions क्या है. Okay, and I'll start with my pile number 1. Let's go. So pile 1, let's see, let's get into your reading. Let's see आपके person क्या कहना चाहेंगे आज आपसे. Shock of the new. Okay, so what I really see here with pile number 1, I have the card shock of the new. अगर आप लोग देख सकते हैं, yeah. For some of you, this person is regretting. Okay, ये person regret करते हैं कोई decision, कोई action or something that this person did to you. Because I think कुछ लोगों के लिए ये जो person है ये आपको किसी और situation के लिए, मे बी अगर ये आपके कोई past person है, ये person आपको किसी और situation के लिए या किसी और person के लिए छोड़ के चले गए थे या आपको ditch कर दिए थे, और this was somebody who went away to attend something else. चाहे वो उनका करियर हो, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे वो उनकी फैमिली के इश्यूज हो, जो भी हो. ना आई सी दैट ये पर्सन रियलाइज़ करते हैं दैट इन्होंने जो भी जिस कारण से आपको छोड़ा था या जिस कारण से आपको बिट्रे किए थे इस पर्सन ने, वो कारण बेसिकली वर्कआउट नहीं किया. वो जो भी न्यू लाइफ था इनका, वो जो भी न्यू पर्सन थी या था इनके लिए, वो सही नहीं निकला इस पर्सन के लिए. एंड दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग दैट उन्होंने क्या गलती किया, उन्होंने बेसिकली क्या खोया है अपनी लाइफ में. दिस पर्सन डेफिनेटली रिग्रेट्स इट. दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. Yes, this person is regretting that choice that this person made. So I feel that ये पर्सन आपको मिस करते हैं एंड दैट इज़ समथिंग दैट ऑल्सो दे वुड लाइक टू से विद द नंबर 6. आई एम गेटिंग द एनर्जी. आई ऑल्सो फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैओस गोइंग ऑन. लाइक आप इस पर्सन के माइंड में अभी भी हो, बट ऑल्सो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारा शोर शराबा है इस पर्सन के माइंड में. चाहे वो शोर शराबा किसी और सिचुएशन से आ रहा हो, इनकी फैमिली से आ रहा हो, या बस इस कनेक्शन से आ रहा हो. इस पर्सन को डर है दैट अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो लाइक ये किस मुंह से आपको अप्रोच करेंगे या क्या बोल के ये आपको अप्रोच करेंगे. दैट इज़ अ फियर जो इस पर्सन को फील होता है. आई ऑल्सो फील अगर ये पर्सन कोई नया पर्सन है आपके लाइफ में, आई सी दिस एज ये पर्सन आपको अप्रोच करने से डरते हैं. आई सी यहाँ पे थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस है, यहाँ पे क्राउन चक्रा ब्लॉकेजेस हो सकते हैं. दिस पर्सन इज़ रियली रियली स्कैर्ड टू टेक स्टेप फॉरवर्ड और टू मेक अ डिसीजन हियर. ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये बस आपको देखते हैं या आपके बारे में सोचते हैं एंड रिग्रेट करते हैं. अगर ये न्यू पर्सन है, ये पर्सन डेफिनेटली आप पे नज़र रखते हैं एंड ऑल्सो ये सोचते हैं कि काश वो फॉरवर्ड मूव कर पाते, काश वो आपकी तरफ आ पाते.
Yes, I have the King of Cups. Definitely there is a lot of love. सो ये पर्सन मे बी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, नेसेसरी नहीं है, बट ये पर्सन अभी भी फील करते हैं आपके लिए. आई डोंट नो अगर ये आपके करंट पर्सन है, पास्ट पर्सन है या कोई न्यू पर्सन है, बट ये पर्सन अपने मन में फीलिंग्स रखते हैं, इमोशन, अटैचमेंट्स रखते हैं. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये लव है, प्योर लव. कुछ लोगों के लिए ये अटैचमेंट है जो ये पर्सन कैरी करते हैं. एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ रियली इमोशनल आपके बारे में. वाओ, या 6 ऑफ पेंटिकल्स, इम्बैलेंस. इस सिचुएशन में कुछ इम्बैलेंस था जो मे बी इस पर्सन ने क्रिएट किया था आप दोनों के लिए. ठीक है, सो दिस पर्सन डिड समथिंग डेफिनेटली इन द पास्ट. या आपके इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में इस वक्त इम्बैलेंस है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या जो भी हो. आई ऑल्सो फील अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हो या आप डील कर रहे हो इस पर्सन के साथ, लाइक आप लोग अलग नहीं हो एक दूसरे से, आई फील ये पर्सन के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो ये पर्सन गो थ्रू कर रहे हैं, बहुत सारा इश्यूज़ है जो ये पर्सन गो थ्रू कर रहे हैं, एंड ये बहुत मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है ये पर्सन. सो अगर ये पर्सन कभी कभी रूड बिहेव करते हैं, कभी कभी चिढ़ जाते हैं, दैट माइट बी अ रीज़न वाई. Yes, I have the Fool and new life. These are connected, I feel. I definitely see ये person इस वक्त मे बी सिंगल है अगर ये आपके साथ नहीं है तो. एंड अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ थे, ये डेफिनेटली उस थर्ड पार्टी से मूव अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, उस थर्ड पार्टी से ये अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने ये रियलाइज़ किया है दैट वो उनके लिए सही जगह नहीं है, लाइक वहाँ पे वो कभी भी खुश नहीं रह सकते. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट. आई थिंक यहाँ पे 50-60% लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, बट अगर आपको लगता है आप नहीं हो, प्लीज़ डोंट फ्रीक आउट. ये जनरल रीडिंग है. अगर आप नहीं हो, ये पर्सन बस आपको अप्रोच करने से डरते हैं, ये पर्सन बस अपना सच आपसे कहने से डरते हैं, बिकॉज मे बी उनका पास्ट बिहेवियर था, या मे बी उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया था जिसके लिए पर्सन शर्मिंदा है. एंड अगर ये न्यू पर्सन है, इस पर्सन को लगता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में. सो ये किस मुंह से आपको अप्रोच करेंगे, क्या बोल के ये आपको अप्रोच करेंगे. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ conflict that is happening. I also see the conflict here in this person's mind. यहाँ पे energies are very conflicted, energies are very contradictory, I would say. Yeah. एंड ऑल्सो हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में कुछ मैनिपुलेशंस है, मे बी आप दोनों के कनेक्शन के खिलाफ है कुछ लोग इस पर्सन के लाइफ में, या थे इन द पास्ट, जो इस पर्सन के कान भरने की कोशिश कर रहे हैं या इनको उल्टा सीधा समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो कुछ लोगों के लिए है, दैट इज़ नॉट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. सो इफ़ लाइक टेक इट इफ़ इट रेजोनेट्स. लेट मी सी इस सिचुएशन में ब्लॉकेज क्या क्या है, करंट सिचुएशन में आप दोनों के बीच में क्या ब्लॉकेजेस है. ओके, आई हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स. ही यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स था. इम्बैलेंस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स. येस, दिस इज़ एज आई सेड, बहुत लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है विद दिस 3 ऑफ कप्स. आई थिंक नाउ थर्ड पार्टी मतलब फैमिली भी हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, मे बी आप दोनों का कास्ट रिलीजन डिफरेंट है एंड वो एक प्रॉब्लम है मे बी उनके फैमिली के लिए या उनके लोकेलिटी के लिए, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए that is a situation, but I see that there is something that is blocking. So for most of you this is third party. For others of you इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है आप दोनों के सामने या जो ब्लॉकेज है आप दोनों के कनेक्शन में, वो है इम्बैलेंस, वो है अनसर्टिनिटी. ठीक है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, ये पर्सन मैन्यूपुलेटेड है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई फील. इनके लाइफ में कोई है इस वक्त या कोई ऐसा सिचुएशन है जो इनको पीछे हटने में मजबूर कर रहा है आपसे, या जो इनका कान भरने का काम कर रहे हैं, जो लोग या जो सिचुएशंस मे बी. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है. थर्ड पार्टी अगेन करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, रिलेशनशिप, मैरिज, कुछ भी हो सकता है. बट ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है,
इस सिचुएशन को ये पर्सन रिग्रेट करते हैं। ये जो उनका डिसीजन था आपको छोड़ के जाने का, उस डिसीजन को ये पर्सन रिग्रेट करते हैं। एंड ऑल्सो ये सोचते हैं कि वो कैसे अब आपको मुंह दिखाएंगे, लाइक कैसे आपको अप्रोच करेंगे, क्या कहेंगे, कौन सा एक्सक्यूज़ देंगे। बिकॉज इस पर्सन को लगता है आप ऑलरेडी जो सच है वो देख चुके हो, आप जो सच है उसको रियलाइज़ कर चुके हो। सो अब ये आपको आके क्या कहेंगे एंड क्या आप मानोगे या नहीं। बिकॉज इस पर्सन को लगता है मे बी यू हैव मूव्ड ऑन, या तो आपको जो सच है वो दिख चुका है, सो आप इस पर्सन की बातों को क्यों मानोगे। यू नो, दैट इज़ अ सिचुएशन एंड दैट इज़ द ब्लॉकेज मेनली। Let me see what does the universe have for you, pile number 1. What does the universe have for my pile number 1? Niyamas, okay. Pile number 1, this is what the universe has for you. Now I feel इस situation में that this is calling for your soul, pile number 1. I see that अगर आपने खुद को choose किया है इस connection में, अगर आपने खुद को प्रायोरिटी दिया है, आपने कुछ गलत नहीं किया है पाइल 1, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। स्पिरिट चाहते हैं दैट आप इस वक्त खुद को प्रायोरिटी दे, ठीक है। स्पिरिट चाहते हैं दैट आप अपने बाउंड्रीज को सेट करके रखें, बिकॉज यू आर मूविंग टूवर्ड्स द लाइट, यू विल सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। कुछ लोग यहाँ पे अब तक आप मे बी आप मूव ऑन कर रहे हो मे बी इस पर्सन से, ऐसा आपका सिचुएशन है। एंड स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो दैट आप डेफिनेटली मूव ऑन कर पाओगे, डेफिनेटली यू आर मूविंग टूवर्ड्स द लाइट। सो डू नॉट वरी। अगर आप सोच रहे हो दैट आप इस पर्सन के साथ आपके जो मेमोरीज थे वो कितने अच्छे थे, पास्ट कितना अच्छा था, ये पर्सन कितने अच्छे थे, अगर ये रियलाइज़ करते तो कितना अच्छा होता। स्पिरिट इज सेइंग दैट इस पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है, ज़रूर मिलेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको बस इस वक्त खुद को प्रायोरिटी देना है एंड यू हैव टू सी द लाइट। आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर ये पर्सन वापस आते हैं फॉर अ न्यू बिगिनिंग, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो दैट आप इस पर्सन को चांस दोगे या नहीं वो आपका चॉइस रहेगा ऑब्वियसली, बट जो भी करना अपने बाउंड्रीज के अंदर रह के करना, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना सेल्फ लव हीलिंग जर्नी को याद रख के करना। डोंट टेक ड्रास्टिक डिसीजंस। अपने बाउंड्रीज को फिर से ख़राब मत करना इस पर्सन के लिए या किसी भी पर्सन के लिए। एंड लिसन टू योर सोल्स कॉलिंग। आपका इंट्यूशन, आपका सोल, आपके गाइड्स आपसे कुछ कह रहे हैं। मे बी कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पे मेडिटेशन करते हो, एज यू कैन सी दिस पर्सन इज सिटिंग इन अ मेडिटेशन। मे बी आप मेडिटेशन करते हो, मे बी दैट इज़ हाउ यू विल गेट दोज डाउनलोड्स, दैट इज़ हाउ आपको समझ में आएगा, यू नो, दैट हाउ टू गो अबाउट द सिचुएशन। सो जस्ट आपको अपने बाउंड्रीज को काबू रखना है, बाउंड्रीज पे। फॉर सम ऑफ यू आपका लाइफस्टाइल बहुत इम्बैलेंस्ड हो रहा है इस सिचुएशन के लिए। आपके लाइफस्टाइल पे आपको ध्यान रखना है। मे बी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको बहुत एक्स्ट्रा सोच रहे हो आप। समथिंग दैट इज़ रूइनिंग योर लाइफ स्टाइल। आई डोंट नो कि वो इस पर्सन के लिए है, इस सिचुएशन के लिए है, बट स्पिरिट इज सेइंग दैट आपका लाइफ स्टाइल सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मील स्किप कर रहे हो या बुरा डाइट कर रहे हो या आई डोंट नो लाइक कुछ बुरे हैबिट्स आपने करना चालू किया है और समथिंग लाइक दैट। स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू लुक फॉर इट। आपका लाइफ स्टाइल चेंजेस, आपका डिसिप्लिन सही जगह है या नहीं। I don't know, this was a very random message, but that is what Spirit has for you. So just look out for it. And this person I feel will come back, and Spirit wants you to remember your lesson. जो लेसन आपने पास्ट में लर्न किया है इस पर्सन के साथ, या फिर अगर ये न्यू पर्सन है तो आपने जो भी लेसन लर्न किया है अपने पास्ट में, उस लेसन को मत भूलना।
यू नो बी इन योर ओन डिसिप्लिन, अपना डिसिप्लिन, अपना लेसन, अपना जर्नी जो है आपका, हीलिंग जर्नी बोलो, सेल्फ लव जर्नी बोलो, आपने जो भी गो थ्रू किया है उन सारी चीज़ों को, सारे एक्सपीरियंसेस को आपको याद रख के डिसीजन लेना है फ्यूचर में. डोंट टेक रैंडम डिसीजंस, do not take random decisions. That is what spirit is showing me. Spirit is also showing me that इस person को अपना कर्मा मिल रहा है या मिलेगा. This person is already regretting. इन्होंने जो खराब किया है आपके साथ. Yes. Future action is take time to breathe out. What is the future action of this person? Have faith in your dreams. Okay. What I see आपके person के future actions, this person, ये पर्सन प्लान कर रहे हैं कि सिचुएशन के बारे में क्या करना है. इस पर्सन ने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है. ठीक है, पाइल नंबर 1, दिस पर्सन इज़ नॉट येट डिसाइडेड, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा कुछ हो रहा है, चाहे वो प्रॉब्लम हो, करियर इश्यूज़ हो, फिनेंशियल इश्यूज़ हो, हेल्थ इशू हो, आई डोंट नो, बट देयर इज़ ऑलरेडी अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. लाइक हो सकता है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड है आप दोनों के सिचुएशन में, या उनको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ रहा है. सो दैट इज़ द रीज़न आपके पर्सन बेसिकली थोड़ा सा शांत रह के सोचना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, दैट आखिर वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं. I also have faith in your dreams. Have faith in your dreams. So this is telling me that अगर आपको लगता है that you want to wait for this person, आपको wait करना है, आपको इस person को second chance देना है, Spirit is saying वो आपका free will है, वो आपका choice है, but there is a chance this person will come back. Pile number 1, I feel it that there is a chance that this person will make a return. Now ऑल्सो आई फील जो लोग ऑलरेडी हील हो चुके हो, या आपने ऑलरेडी अपना हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर दिया है एंड आपको वापस नहीं जाना है इस पर्सन के साथ, आप ऑलरेडी समझ चुके हो दैट यू वांट टू मूव फॉरवर्ड. आपका जो जर्नी है वो इस आप अपना जर्नी इस पर्सन के साथ कंप्लीट कर चुके हो. इस लाइफ टाइम में आपने अपना साइकिल कंप्लीट कर दिया है इस पर्सन के साथ. स्पिरिट इज सेइंग हैव फेथ इन योर जर्नी, हैव फेथ वेयर यू आर लीडिंग. आप जहाँ जा रहे हो टुवर्ड्स द लाइट, आपको फेथ रखना है, आपके साथ बुरा कभी नहीं होगा. अगर आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है इस रिलेशनशिप में, स्पिरिट इज सेइंग दैट स्पिरिट विल टेक केयर ऑफ योर इनजस्टिस एंड जस्टिस. स्पिरिट विल गिव दिस पर्सन देयर कर्मा. सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द लाइट, कीप ऑन मूविंग. पीछे मुड़ के कभी मत देखना, एंड अपने बाउंड्रीज़ को कभी इस पर्सन के लिए खोना मत, बेसिकली, यू नो, and everything will work out fine. Pile number 1. So this was a beautiful reading, and thank you so much for joining in. So that is what I have for you, pile 1. I hope you got your answers, you got your messages, and yeah, I hope this resonates with you as well, pile 1. So अगर आपको ये अच्छा लगा हो, then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family. एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय. ओके, सो नाउ आई मूव टू माय पाइल नंबर 2 एंड आई विल सी कि आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या है दैट आई कैन फाइंड आउट. हियर पाइल नंबर 2. सो जिन लोगों ने भी ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल या फिर स्टोन चूज़ किया था, आप मेरे पाइल नंबर 2 है. सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट. आपके पर्सन आज आपसे क्या कहना चाहेंगे. फॉलो योर ओन रिदम. नंबर 5. ओके, सो आई फील चेंजेस. आई फील ये पर्सन अपने लाइफ में चेंजेस कर रहे हैं, एंड ये पर्सन कहना चाहते हैं यही आपसे टुडे, राइट नाउ, करंट एनर्जीज पे डिपेंड करके, दैट ये पर्सन आपको बहुत एक पावरफुल इंसान मानते हैं. इस पर्सन को लगता है दैट आप मे बी आप एक डांसर हो, मे बी आप कुछ टैलेंट रखते हो अपने अंदर, या मे बी आप दूसरों से बहुत अलग हो, एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन वुड लाइक टू टेल यू, कि आप दूसरों से बहुत अलग हो, आप दूसरों से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, या आप में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो आप
छुपाते हो दुनिया से या आपको खुद ही पता नहीं है. सो ये पर्सन आपको बहुत ही स्पेशल मानते हैं पाइल 2, एंड दिस पर्सन फील्स दैट आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो बहुत ही रिदमिक है. एंड ये पर्सन चाहते हैं आप हमेशा खुश रहे. ये पर्सन चाहते हैं आप हमेशा लाइक बी योर सेल्फ, आप अपने जैसा ही रहे. आपको किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको किसी को देख के अपने आप को चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. यू आर ब्यूटिफुल एज यू आर. आप बहुत ही प्रेशियस हो, आप बहुत ही स्पेशल हो, जस्ट द वे यू आर, पाइल नंबर 2. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्टार्ट टू योर रीडिंग. सो ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत ही स्पेशल मानते हैं. आई डोंट नो आप लोग साथ हो या नहीं, बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप कभी चेंज मत होना. आप जैसे हो आप वैसे रहो. आपका जो ओरिजिनलिटी है उसको आप बेसिकली ध्यान में रखो. यू नो, नेवर एवर एवर चेंज फॉर समबडी एल्स बिकॉज यू आर वेरी स्पेशल फॉर दिस पर्सन. आई हैव द स्टार एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी. ब्यूटिफुल, 2 ऑफ वॉन्ड्स. ये पर्सन आपको एक पेडिस्टल पे देखते हैं हमेशा, चाहे वो ये आपको दिखाते हो या नहीं, बट इस पर्सन के लिए आप हमेशा दूसरों से अलग हो. यू स्टैंड ऑन अ पेडिस्टल. यू आर समबडी हु इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. एंड अगर आपने इस पर्सन से कभी कहा था आप कुछ करना चाहते हो, आप अपने करियर में या अपने फाइनेंसेस में या ओवरऑल अपने लाइफ में आप कुछ बनना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, ये पर्सन चाहते हैं आप सक्सेसफुल रहे लाइफ में एंड आप बस खुश रहे. दैट इज़ व्हाट आई रियली फील. या 9 ऑफ पेंटिकल्स. ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं दैट मे बी आपके लाइफ में बहुत आई डोंट नो, मे बी आपने इस पर्सन के साथ शेयर किया है या नहीं, बट this person would like to say that don't be scared to stand alone. ज़रूरी नहीं है आपको इस लाइफ में सारे लोग आपका साथ देंगे या सारे लोग आपके लिए स्टैंड लेंगे इस दुनिया में, बट वो आपके शाइन को नहीं ख़त्म करना चाहिए. चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, यू हैव टू कीप शाइनिंग, यू हैव टू डू योर थिंग, बिकॉज यू आर समबडी रेयर. यू हैव सम क्वालिटीज़ जो बहुत रेयर है, जो बहुत कम लोगों में दिखता है, जो बहुत कम लोगों में ये क्वालिटीज़ मिलता है. सो दिस पर्सन लाइक्स टू चूज़ योर सेल्फ. आप इस पर्सन को लगता है आप मे बी दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देते हो या दूसरे लोग क्या कहते हैं उसको पहले उस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देते हो. बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप खुद के थॉट्स को पहले प्रायोरिटी दे, दूसरों के थॉट्स को नहीं. एंड ये पर्सन इस वक्त अपने लाइफ में अपने काम या अपना फाइनेंसेस या अपना करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा बिजी है. ये डेफिनेटली अपने लाइफ में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, मे बी अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिस कारण से मे बी ये पर्सन आपसे दूर है. लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों में, बट ये पर्सन आपको हर रोज़ याद करते हैं. ये पर्सन को आप याद हो, आप कैसे हो, आपकी जो स्माइल है, आपने क्या कहा था इस पर्सन से, आपका जो एनर्जी है वो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा याद आता है. चाहे आप लोग साथ हो, आप लोग अलग हो, इट डज नॉट मैटर. पाइल नंबर 2. एंड ये पर्सन कहना चाहते हैं दैट ये पर्सन होप करते हैं दैट अगर आप अलग हो, आप खुश हो, आप डेफिनेटली आप खुश रहो, आप हैप्पी रहो, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो. डू नॉट स्टॉप फॉर एनीबडी एल्स. इस पर्सन के लिए भी नहीं. ओके. एंड मे बी कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने अपने करियर को चूज़ किया था एंड दैट इज़ द रीज़न आप दोनों में प्रॉब्लम्स है, झगड़ा झमेला कुछ हुआ था. मे बी ये बहुत ही एक वर्कोहॉलिक टाइप के पर्सन है जो हमेशा काम को लेके बिजी रहते हैं, हो सकता है. बट करंट सिचुएशन में ये पर्सन अपने काम को लेके बिजी है. दैट इज़ ऑल आई कैन सी. एंड आई सी दैट ये पर्सन होप करते हैं दैट ये पर्सन आपको हर्ट कभी भी नहीं करना चाहते हैं, ना ही कभी सोचते हैं हर्ट करने के बारे में. दिस इज समबडी हु कीप्स यू ऑन अ पेडेस्टल. पाइल 2. कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि ये पर्सन मे बी किसी और के साथ है, बट आई फील ये पर्सन इस वक्त अकेले हैं, ये पर्सन इस वक्त सिंगल है. आई जस्ट फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, नॉट फॉर एवरीबडी.
एंड ये पर्सन आपको मिस करते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। इस पर्सन को लगता है आप लोग सोलमेट्स हो, या आप में जो एनर्जी है वो कभी उन्होंने किसी और में नहीं देखा है। ये पर्सन इस वक्त में भी बिज़ी है, या इस वक्त ये अपनी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं अपने करियर या फाइनेंसेस के बारे में। एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन इस वक्त आपके पास नहीं आ सकते, आपको अटेंशन नहीं दे सकते। बट ये पर्सन होप रखते हैं दैट आप दोनों का जो फ्यूचर है वो काफ़ी बेटर होगा करंट सिचुएशन से, या मे बी फ्यूचर में आप लोग फिर से मिलोगे अगर आप लोग अलग हो तो, काइंड ऑफ यू नो। फॉर सम ऑफ यू, अगर ये ऑलरेडी आपके हस्बैंड या पार्टनर है एंड आप ऑलरेडी लाइक एक दूसरे के साथ हो, लाइक यहाँ पे सेपरेशन नहीं हुआ है, ये पर्सन चाहते हैं आपको एक बहुत ही हैप्पी फ्यूचर देना, लाइक फिनेंशियली अबंडेंट, हैप्पी लाइफ, एक अच्छा घर, एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं ये पर्सन। लेट्स सी यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्या है। आई हैव स्ट्रेंथ, द टावर, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो ज़ोडिएक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट फिर भी सम ऑफ यू आस्क मी टू से। सो मेरे पास यहाँ पे ज़ोडिएक है स्कॉर्पियो, मेरे पास है एक्वेरियस, मेरे पास है लियो। ओके ओके, सो ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज ये है दैट ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन के लिए वेट करें, बिकॉज इस वक्त ये पर्सन आपको कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते। आई फील इस वक्त ये पर्सन की लाइफ में फिनेंशियल क्राइसिस है, या करियर वाइज कुछ प्रॉब्लम है जो ये पर्सन डील कर रहे हैं जिसके साथ, एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन वुड लाइक टू टेल यू कि ये पर्सन के लाइफ में इस वक्त क्राइसिस है। ये पर्सन आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हो या जो आप चाहते हो। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड इस पर्सन को आपके लिए इमोशंस है इस पर्सन के अंदर विद द किंग ऑफ कप्स, बट ये पर्सन इस वक्त उस इमोशंस को भी प्रायोरिटी नहीं दे सकते। ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टैंगल्ड अप है, बहुत ही ज़्यादा कहीं कुछ और सिचुएशन में इन्वॉल्व्ड है। एंड आई रियली डोंट फील कि ये कोई और रिलेशनशिप या मैरिज है। अगर है आपको पता है, बट आई डोंट फील। आई थिंक मेन जो प्रॉब्लम है दैट इज़ समथिंग लाइक अ फिनेंशियल टर्मोइल, फिनेंशियल प्रॉब्लम, या करियर वाइज कुछ प्रॉब्लम है। एंड ये पर्सन चाहते हैं आप वेट करें इस पर्सन के लिए, बट इस पर्सन को ये भी लगता है दैट आप क्यों वेट करोगे, बिकॉज आप डिज़र्व नहीं करते हो वेट करना, या ये पर्सन आपको जो प्रायोरिटी नहीं देते हैं, मे बी कम एफर्ट्स देते हैं, सो आप वो डिज़र्व नहीं करते हो। मे बी आप बहुत कुछ बेटर डिज़र्व करते हो, बिकॉज यू आर स्पेशल, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर जो इस पर्सन के पास ऑफर करने जैसा नहीं है राइट नाउ। And that is the blockage actually here. Let's see what does the universe have for you. Pile number 2. Wow, I have Sita. Beautiful. See, I told you that इस person को लगता है you are beautiful, you have something very deep or very different. Now, universe has, what does the universe has to say? Pile number 2, I feel the universe is, first of all, you are protected, you are blessed, okay, you are blessed. So आपका ये जो कनेक्शन है, आई फील इसमें जो भी आपका करंट सिचुएशन है, योर स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ लुकिंग एट इट। इन लोगों को पता है, आपके गाइड्स को, एंजल्स को पता है आप लोग क्या गो थ्रू कर रहे हो, एंड कितना एक्सट्रीम लेवल है ये, या कितना मुश्किल है ये आपके या आपके पर्सन के लिए राइट नाउ द सिचुएशन। बट दे वॉन्ट यू टू नो दैट जब भी आप बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हो, या आपके पर्सन जब भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, या सैड होते हैं, या डिप्रेस्ड फील करते हैं, द यूनिवर्स ऑलवेज हैव योर बैक। लाइक मे बी आप कुछ छोटे मोटे चीज़ें देखते रहते हो, लाइक सडनली कुछ ऐसा होता है जो आपको लगता है ये कैसे हो गया, लाइक दीज आर सम स्मॉल हिंट्स जो यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू गिव यू। ये छोटे छोटे चीज़ें हो सकते हैं, लाइक सडनली आपको इस पर्सन का नाम दिख जाए कहीं पे, सडनली आप एक बिजी डे में आप काम कर रहे हो एंड सडनली आपको इस पर्सन की याद आने लगे, या सडनली कोई इनके बारे में पूछने लगे आपसे। सो दीज आर ऑल सडन थिंग्स जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बट सडनली होने लगता है। साइंस मिलता है, सिम्बल्स मिलता है यूनिवर्स से। दैट इज़ हाउ यू नो दैट योर गाइड्स आर लिसनिंग। आप जब प्रे करते हो,
आप जब कुछ बोलते हो यूनिवर्स को, अपने गाइड्स को, अपने गॉड को, ये लोग सुनते हैं, दे नो योर सिचुएशन, ठीक है, एंड दे वांट यू टू बी काम। ये मे बी कुछ लोग यहाँ पे आप बहुत हाइपर हो जाते हो, आप बहुत टेंस्ड हो जाते हो किसी चीज़ को लेके, चाहे वो ये रिलेशनशिप हो, चाहे ये पर्सन हो, चाहे वो आपका एंजाइटी लेवल हो, स्ट्रेस लेवल हो, एंड यूनिवर्स वांट्स यू टू स्टे काम। ऐसा नहीं है कि आपके पीछे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है या कोई भी आपके दुख को समझता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो योर फ्यूचर इज लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैज। सो मे बी कुछ लोग यहाँ पे सैजिटेरियस हो या आपके चार्ट में सैजिटेरियस है, नेसेसरी नहीं है। विद लुक एट द बिगर पिक्चर, आपके पर्सन, दिस इज योर पर्सन's एनर्जी। आई फील ये पर्सन आपको बोल रहे हैं टू लुक एट द बिगर थिंग्स इन लाइफ। अगर ये पर्सन अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में है या कोई दूरी है आप दोनों में, आई फील ये पर्सन चाहते हैं दैट आप वेट करें, आप सिचुएशन को समझें कि ये सिचुएशन ऐसा क्यों है या क्या हो सकता है, एंड आप हमेशा पॉजिटिव रहे, बिकॉज आई ऑल्सो हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। फुल मून इन टॉरस, सो मे बी ए पर्सन, या आप टॉरस हो सकते हो या सैज हो सकते हो, डजंट मैटर दैट वे। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू नो दैट ये जो भी कर रहे हैं ये अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, ये आप दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। मे बी अगर इस पर्सन ने आपसे कभी कहा था ये पर्सन आपके बारे में सीरियस है, ये पर्सन वापस आके आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको एक फैमिली ऑफर करना चाहते हैं, ये पर्सन तब सीरियस थे, इन्होंने झूठ नहीं कहा था आपसे। सो स्पेशली आई फील पाइल 2, ये जो भी पाइल है यहाँ पे लोग एक्चुअली में दे आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या तो आप दोनों में कम्युनिकेशन एक गैप है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है मे बी फॉर सम ऑफ यू, बट वट एवर द सिचुएशन, ये पर्सन वॉन्ट्स यू टू नो दैट आप टेंशन फ्री रहो, वेट करो, जब सही टाइम आएगा, जब ये पर्सन थोड़ा सा भी स्टेबल फील करेंगे लाइफ में, ये पर्सन ऑब्वियसली आपको एक बेटर लाइफ ऑफर करना चाहेंगे। क्या आप उस लाइफ को एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, वो डेफिनेटली आपका डिसीजन है, आपका चॉइस है, बट दिस पर्सन वुड डेफिनेटली लाइक टू कम फॉरवर्ड। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स भी सेम चीज़ ऑलमोस्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, दैट होल्ड ऑन टू योर करंट सिचुएशन, लाइक इतना स्ट्रेस मत लो, यू नो, डांस विथ योर ओन रिदम, हैप्पी रहो, लाइटन योर एनर्जीज, आपको जो करना अच्छा लगता है वो करो, बी योर सेल्फ, ठीक है, बिकॉज आप अगर स्ट्रेस ले रहे हो, आप अगर अपने खुद के सोल को फोर्स कर रहे हो कुछ करने में, कुछ बिलीव करने में, कुछ चेंजेस करने में, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपको खुशी नहीं देगी इन द लॉन्ग रन। सो दैट इज़ व्हाट स्पिरिट वुड लाइक यू टू नो, ठीक है। सो पाइल 2, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग। आई थिंक कुछ लोग, और ये भी आपका सवाल था कि मुझे वेट करना चाहिए या नहीं। आई थिंक योर आंसर इज़ येस, आपको वेट करके देखना चाहिए अगर आप करना चाहते हो तो, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइल 2। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, आपको रेजोनेट किया हो, बिकॉज अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। Okay, so now let us move on to my pile number 3, and let's see that pile number 3 के लोगों के लिए क्या messages है। So whoever chose this yellow stone, basically आप मेरे pile number 3 है, and what is your message, what is your guidance, ये person क्या कहना चाहेंगे आज आपसे, what do you feel? Okay, I feel Libra energy, Cancer energy, Pisces energy। नाउ विथ वॉट डू यू फील, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे यही कहना चाहेंगे दैट ये पर्सन श्योर नहीं है आप कैसा फील करते हो, ये पर्सन श्योर नहीं है ये खुद कैसा फील करते हैं इस कनेक्शन के बारे में। आई थिंक आप दोनों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है एक साथ, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप था, जितना भी था, आप दोनों ने जो एक्सपीरियंस किया है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए मे बी आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ पर्सन है, अगर आप मानते हो पास्ट लाइफ में तो। ना ये पर्सन बेसिकली अभी एनालाइज कर रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इस पर्सन को लगता है इस पर्सन से छुपा हुआ है, या इस पर्सन को समझ में नहीं आता है इस कनेक्शन के बारे में या आपके बारे में, एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ टेलिंग यू। ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को समझ में नहीं आता है, दैट इज़ ट्रू।
एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन लाइक क्या सोचना चाहिए इस पर्सन को आपके बारे में, इनके जो फीलिंग्स है क्या वो सच है, क्या वो रियलिटी है, क्या जो ये सोच रहे हैं, जो ये प्लान कर रहे हैं, क्या वो पॉसिबल है, या इनके जो फीलिंग्स है तो आपके फीलिंग्स कैसे होंगे, आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते होंगे. सो आई थिंक इस पर्सन के मन में बहुत सारा क्वेश्चन है. इस पर्सन, आई ऑल्सो फील टॉरस एनर्जी, हाई प्रीस्टेस एनर्जी. इस पर्सन को लगता है इस कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ छुपा हुआ है उनसे, या लाइक बहुत सारा एस्पेक्ट है इस कनेक्शन का जो उनको अभी तक समझ में नहीं आया है. For some of you, you know, but yeah, this person feels very lost. Like ये person time, I think ये person hermit energy में है. I think ये person basically एक analytical situation में है जहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं. That is all I can see, and that is what ये person आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं. Yes, I have the moon here. See, I told you Cancer and Pisces energy. With the moon ये person sure नहीं है. I have the moon, I have the moon. ये person sure नहीं है कि इस like यही वो कहेंगे आपसे कि इनको अभी तक क्लैरिटी नहीं है, इनको अभी तक श्योरिटी नहीं है कि ये इस कनेक्शन को आगे कहाँ तक लेके जा सकते हैं, या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या नहीं है अगर आप दोनों अलग हो तो. ऑल्सो इनको पता नहीं है कि आपके सारे जवाब ये कैसे देंगे. आपके सारे क्वेश्चन का आंसर इनके पास नहीं है. एंड ये चाहते हैं आप उनको समझें, आप उनके एनर्जी को समझें. दिस इज़ समबडी जो somebody who is right now ये बहुत ही इमोशनल सिचुएशन में है. आई थिंक, आई डोंट नो वाई, बट इनका इमोशंस बहुत हाई है इस वक्त. ये आपको बेटर समझने की कोशिश करना चाहते हैं, ये आपके और भी क्लोज आने की कोशिश करना चाहते हैं, आपको और भी अच्छे से जानना चाहते हैं. ये यू नो, इवन दो अगर आप मे बी एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हो, फिर भी इस पर्सन को लगता है कुछ चीज़ें हैं जो इनके लिए अभी भी अननोन है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी इनके लिए एक सवाल ही है इस कनेक्शन में. नाउ आई ऑल्सो विद दीज कार्ड्स आई फील राइट नाउ ये पर्सन के लाइफ में मे बी दिस इज़ लाइक इस पर्सन का इंटेंशन है इस कनेक्शन को आगे लेके जाना. इस पर्सन का इंटेंशन है कि इस कनेक्शन के फ्यूचर को स्टेबलाइज करना, बट इस पर्सन को लगता है कि वो श्योर नहीं है. उनको लगता है इस कनेक्शन का जैसे कुछ प्लस पॉइंट्स है वैसे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है. मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी थर्ड पार्टी, मे बी समथिंग एल्स, बट देयर इज़ समथिंग दैट इज़ स्टॉपिंग राइट नाउ. इस पर्सन के लिए इस कनेक्शन को लाइक एक्शन लेना, या इस कनेक्शन को एक प्रॉपर टाइटल देना कि हाँ ये दिस इज़ सीरियस, या फिर येस मैं रेडी हूँ टू मेक अ फॉरवर्ड एक्शन, और येस आई एम रेडी टू मैरी यू. सो ऐसा कुछ बोलना इस पर्सन के लिए, ऐसा कुछ कमिटमेंट, फिक्स्ड कमिटमेंट देना इस पर्सन के लिए इस वक्त बहुत ही मुश्किल है. बिकॉज मे बी पर्सनल रीजंस के लिए, या इन जनरल बिकॉज इस पर्सन को अभी तक वो क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या करना चाहेंगे इस पर्सन के इस कनेक्शन के साथ. सो मे बी फॉर सम ऑफ यू ये कोई नया कनेक्शन है, आपका ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इस पर्सन के साथ. एंड बाकियों के लिए आई फील दैट अगर बहुत दिन हो भी चुका है, मे बी करंट सिचुएशन ही ऐसा है, ये पर्सन को क्लैरिटी नहीं है. एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन वुड लाइक टू टेल यू. 5 of Wands, these are your blockage energies. 5 of Wands, yeah, maybe दूसरे लोग involved है with the 10 of Wands, 5 of Wands, maybe family involved है, maybe third party, maybe problem, issue, conflict. 3 of Pentacles, हो सकता है financial issue, ये भी हो सकता है financially ये person suffer कर रहे हैं. The Star, Aquarius energy. सो ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है एक्वेरियस, मेरे पास है कैंसर, मेरे पास है या दीज आर व्हाट आई हैव. पाइसेस फॉर सम ऑफ यू. सो बेसिकली ये पर्सन हाल नहीं छोड़ना चाहते हैं. पाइल 3, ये पर्सन हाल नहीं छोड़ना चाहते हैं इतना जल्दी, बट इस पर्सन के पास और कोई चारा नहीं है इस वक्त. ये पर्सन अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक इस पर्सन को लगता है दिस इज़ टू मच फॉर दिस पर्सन इस वक्त.
इतना कुछ सोचना, इतने सारे बड़े बड़े डिसीजंस लेना, इतना सारा कमिटमेंट करना इस पर्सन के लिए रियली मुश्किल हो रहा है करेंटली. सो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन को समझें या फिर आप इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दें ताकि ये पर्सन एनालाइज कर पाए, ये पर्सन रियलाइज़ कर पाए कि ये आखिर ये कनेक्शन उनके लिए क्या है, व्हाट इज़ दिस कनेक्शन फॉर हिम, इस कनेक्शन की सच्चाई क्या है, उनकी फीलिंग्स की सच्चाई क्या है. ना आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन झूठे हैं या पर्सन आज तक आपको झूठ बोलते आए हैं, नो, बट ये पर्सन बस इस कनेक्शन को एक डीप लेवल पे समझना चाहते हैं आपके साथ, आपको एक डीप लेवल पे समझना चाहते हैं एंड उसके लिए इस पर्सन को टाइम चाहिए. सो अगर पाइल 3 आप किसी हड़बड़ी में हो इस पर्सन के साथ या आपने इस पर्सन को कोई डेडलाइन दिया है कि तुम इस टाइम तक मुझे बताओ व्हाट यू वांट या फिर हमारा फ्यूचर क्या है या आर यू सीरियस, आई थिंक वो इस पर्सन के लिए एक बहुत ही बड़ा बर्डन है. यू नो आपको कोई भी पर्टिकुलर फिक्स्ड कमिटमेंट या टाइमलाइन ऑफर करना इस वक्त. यस, आई हैव द कार्ड मूलाधारा फ्रॉम what does the universe have for you. So universe आपको जो कहना चाहती है, this is the root chakra basically, this is the root chakra. Now I also see this as universe wants you to be grounded right now. ठीक है, बी ग्राउंडेड, पाइल नंबर 3, बिकॉज ये पर्सन की जो एनर्जी है ये ग्राउंडेड नहीं है. अगर ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, अगर फॉर सम ऑफ यू अगर आप खुद के एनर्जी को ग्राउंड करोगे, ये इस पर्सन को भी हेल्प होगा, इस पर्सन के एनर्जी भी ग्राउंडेड होंगे. सो यूनिवर्स वांट्स यू टू ग्राउंड योर एनर्जीज. ग्राउंड कैसे करना है? ग्राउंड करना मतलब बी स्टेबल. ठीक है, आपको इम्बैलेंस्ड नहीं होना है, आपको कोडिपेंडेंट नहीं होना है. आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने फैमिली के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करो, विथ योर होम, विथ योर फैमिली, विथ योर पीपल, एंड मे बी मेडिटेशन करो, योगा करो, डू समथिंग नेचुरल, प्लांट्स, नेचर के साथ टाइम बिताओ. बेसिकली ग्राउंड योर एनर्जीज. ठीक है, खुद को प्रायोरिटी दो, सेल्फ लव करो, हीलिंग करो. दिस विल हेल्प यू अ लॉट मूविंग फॉरवर्ड. विद द मूलाधारा आप और भी पुराने पैटर्न्स को तोड़ रहे हो, यू आर ब्रेकिंग पैटर्न्स. मे बी अगर ये कोई आपके एक्स पर्सन है, आपने कुछ ऐसा कहा है दैट जो आपके बाउंड्रीज़ को डिफाइन करता है, आपने कहा है दैट आप ये चेंज चाहते हो, ये टाइम चाहते हो, इतना ये वो चाहते हो, बिकॉज जो आप पहले इस पर्सन को कभी मे बी बोले नहीं थे, आपने पहली बार अपना बाउंड्री सेट किया है. कुछ लोगों के लिए आई थिंक वो हो सकता है, अगर ऐसा, देन दैट इज़ ऑल्सो वॉट द यूनिवर्स इज़ हाईलाइटिंग, कि अगर आपने बाउंड्री सेट किया है, आपने सही किया है. स्पिरिट चाहते हैं दैट जो भी आपका सिचुएशन हो, आप अपने रूट चक्रा से कनेक्टेड रहो. बी कनेक्टेड, बी ग्राउंडेड, डोंट गेट इम्बैलेंस्ड या फिर इस पर्सन की एनर्जी को खुद के एनर्जी के साथ मिक्सअप मत कर लेना. उससे आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. एंड इस पर्सन का एनर्जी ऑलरेडी इम्बैलेंस्ड है, इस पर्सन का एनर्जी ऑलरेडी बहुत ही लाइट है, सो कैजुअल है. सो प्लीज़ डोंट गेट imbalanced in your current situation. For some of you, आप spiritual हो, आप इस person की energy को feel कर पाते हो, and spirit wants कि आप अपना energy क्या है और इस person का energy क्या है उसमें please अंतर करें, because आप दोनों के energy को feel कर रहे हो and वो आपको impact कर रहा है, maybe emotionally, mentally, physically, however. So for the future, I have believe in the impossible blue moon energy. ऑल्सो मैनिफेस्ट पाइल थ्रू, बिलीव इन द इम्पॉसिबल. अगर आपको लगता है कुछ इम्पॉसिबल है, अगर आप कुछ पॉसिबल करना चाहते हो, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. येस, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन मैनिफेस्ट. अपना आउटकम आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो थ्रू योर एक्शन, थ्रू योर एनर्जी. मे बी आप मैनिफेस्टेशन करते हो, एज इन प्रैक्टिस करते हो, मे बी नॉट, मे बी आप मेडिटेट करते हो, मे बी आप प्रे करते हो, मे बी आप बस अपने एक्शंस को अलाइंड रखते हो अपने हायर सेल्फ, अपने 3D सेल्फ के साथ. वॉट एवर यू डू पाइल 3, इट इज़ टाइम कि आप बेसिकली अपने खुद को प्रायोरिटी दे एंड यू अंडरस्टैंड कि आखिर आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन से, बिकॉज आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड है राइट नाउ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप कनेक्टेड रहो, आप अलाइंड रहो अपने साथ, अपने एनर्जीज़ को ग्राउंडेड रखो, एंड ये भी समझो
कि आप क्या चाहते हो, and manifest it. If you want, you manifest it. Simple. Okay. So thank you so much pile number 3 for watching. I hope ये आपको अच्छा लगा होगा, resonate किया होगा. अगर किया हो then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.